Good evening, students. Welcome to Career Edge. So, students, today we are going to discuss important questions related to Punjab Police recruitment. So, Punjab Police recruitment की ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs. So let us begin with the question, students. Question number first, direction saying select the most appropriate option to substitute the bold segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. Statement number first, it's saying applications are to be sent to the principal before 30th May. So students, in questions sentence improvement ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਲ ਬੀ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ, ਜੇ ਵਿਲ ਬੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੱਟ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਰ ਸੈਂਡਿੰਗ ਟੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਸੈਂਡ ਟੂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬਿਫੋਰ 30th ਮਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰ ਸੈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਰ ਬੀਇੰਗ ਸੈਂਡ ਟੂ, ਵਰ ਬੀਇੰਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੋ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਸੈਂਡ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਿਫੋਰ 30th ਮਈ। ਸੋ ਯਹੀ ਦਾ ਰਾइट आंसर बनेगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, statement saying select the most appropriate option to fill in the blank sentences. It is hard to conceive of a more blank route than the one that this determined traveler close to follow. So it is hard to conceive of a more, what would be the right answer over here, of a more stimulating, dashing, daunting or provoking. ਸਟਿਮੂਲੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਾੜ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੋਂਟਿੰਗ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। ਡੋਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਟਫ ਰੂਟ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਡਰੇਟ ਲੈਵਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਰਡ ਟੂ ਕਨਸੀਵ ਆਫ ਅ ਮੋਰ ਡੋਂਟਿੰਗ ਰੂਟ। ਡੋਂਟਿੰਗ ਰੂਟ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਿਪੀਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੋਂਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਸੀ ਵਾਲਾ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਦੈਨ ਦ ਵਨ ਦੈਟ ਦਿਸ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਟਰੈਵਲਰ ਚੂਜ਼ ਟੂ ਫੋਲੋ, ठीक है। तो इतने जो रूट ਲਈ ਜਿਹੜਾ राइट वर्ड लगेगा स्टूडेंट, दैट वुड बी डॉन्टिंग, नॉट मोर हार्ड वी कैन से, मतलब कोई सौखा जिहा रस्ता फड़ लिया उन्हें ट्रैवलर ने, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड डायरेक्शन सेइंग सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। करेक्ट पैसिव वॉइस ਆਪਾਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ स्टूडेंट जिते सेंटेंस ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ द आर्टिस्ट प्लेड द वायलिन। प्लेड ਹੁਣ देखना अपना टेंस ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਫॉर्म है ये। वर्ब ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫॉर्म ਕਿਹੜੇ टेंस 'ਚ लगती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस 'ਚ लगती है। तो इधर जाना वॉज वर्ब 'ਚ, तो वॉज वर्ब 'ਚ जाएगा तो हैड बीन तो कट गया। विल बी 'ਚ ਆਪਾਂ कदे नहीं जाना, ठीक है। इज़ बीइंग भी नहीं होना, तंस का बच्चा साडा डी। द वायलिन वॉज प्लेड बाय द आर्टिस्ट, ये दिस वुड बी द राइट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ द जो राइट आंसर, दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। दस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देना पैना सानू। दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, थिन वायर के द्वारा मतलब उस जिस चीज़ को ड्रॉ किया जा सकता है, ड्रॉन किया जा सकता है, उसको स्मूथ नहीं बोलते, फ्लैक्सीबल नहीं बोलते, ब्रिटल दैट टूटने वाला होता है, इट्स डिक्टाइल। डिक्टाइल इज़ द राइट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, डायरेक्शन सेइंग given below are 4 jumbled sentences, select the option that gives their correct order। तो सानू इत्थे राइट ऑप्शन लभना पैना जी, केड़ा बनेगा। जंबल फॉर्म में एक पैसेज दिता गया है जिदा 4 स्टेटमेंट है ABCD। हुण सानू ये देखना पैना कि इत्थे केड़ा बनेगा बिल्कुल राइट, क्लियर। तो पंजवें दा जेड़ा आपां देखिए इत्थे ओनली नैचुरल डाइज, क्या ये पहला सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। हुण इत्थे प्रॉपर नाउन दा एक नाम दिता गया है, काला कलमकारी is a type of hand painted or block printed cotton textile produced in the Indian states of Andhra Pradesh and Telangana। तो ये स्टूडेंट्स इतने एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मतलब कोई नाम दिता गया है, ठीक है। इज़ अ टाइप ऑफ हैंड पेंटेड, तो ये साडा पहला इत्थों सेंटेंस स्टार्ट होएगा, ठीक है। तो हुण सी वाली ऑप्शन ड्रॉप होगी, ठीक है, क्योंकि ये ए ऑप्शन ड्रॉप होगी क्योंकि सी तो स्टार्ट होंदा पिया, सी ऑप्शन भी ड्रॉप होगी, ए तो स्टार्ट होंदा पिया, डी तो हुण 2 ऑप्शन स्टार्ट होंदियां पईयां, इन्हां चों कोई एक आंसर बनेगा। तो डी तो बाद आंदा पिया ए, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना।
ਹੁਣ ए वाली ऑप्शन ओनली नैचुरल डाइज आर यूज्ड इन कलमकारी एंड इट इनवॉल्व सैवरल स्टैप्स। सी लगांदा पे तो दे आर द श्री कलस्थी स्टाइल एंड द मंचलपट्टनम स्टाइल, मतलब स्टाइल की गल करता पाया, उत्ते डाइज की गल करता पाया। ओनली नैचुरल, ओनली जेडे ये वर्ड होंगे ओनली हो गया, ठीक है, ये एडिशन करते हैं बेसिकली। ओके, तो जो डी का जो राइट आंसर बनेगा, मतलब ये डी के नाल जो कनैक्शन बनेगा वो बनेगा ए का, ठीक है। ये टाइप्स पहले नहीं आएगी, ये लिंकिंग जो स्टेटमेंट है वो ये पहले अटैच होएगी, तो बी बनेगा इसका आंसर DABC। फिर बी है देयर आर टू डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ, क्योंकि स्टाइल का जो कनैक्शन है फिर वो अगली स्टेटमेंट के नाल बनता पाया, ठीक है। तो बी और ए का, बी और सी का आपस कनैक्शन है और डी और ए का आपस लिंक बनता पाया, तो आंसर साडा जाएगा जी बी। क्लियर। फिफ्थ का राइट आंसर बनेगा बी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम देना स्टूडेंट्स, तो 6 का जो ऑब्सटिकल की होंगे, ऑब्सटिकल होंगे रुकावट, बाधा, ठीक है। इट्स नॉट बेनिफिट, इट्स नॉट क्लीयरेंस, इट्स नॉट एसेसरी। राइट आंसर वुड बी बैरियर, बैरियर ऑब्सटिकल। देयर आर मैनी ऑब्सटिकल्स इन द पाथ, मतलब साढ़े रास्ते कई बाधाएँ कई रुकावटें हैं, तो बैरियर भी वही होंगे, जिदा बैरियर लगाते पुलिस वाले बैरियर लगाते हैं, नाके लगाते हैं, वो बैरियर ही एक तरह से रुकावट है वो। क्लियर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हूँ 7वां का सानू राइट स्पैलिंग इत्थे देखनी पैनी, कि बनेगी, तो 40th की स्पैलिंग लभनी पैनी जी। तो 14th ये गलत है, 40th ये भी स्पेलिंग रॉन्ग है, 40th ये भी गलत है, बी आंसर बनेगा जी। 7 जी 40th जी राइट स्पेलिंग होगी FORTEIETH, दिस वुड बी द राइट स्पेलिंग। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। सिमिलरली सानू हुण इत्थे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड लभना पैना जी क्वेश्चन नंबर 8 में। तो टैलेंट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत दे रखी है, सेंटीमेंट की स्पेलिंग इत्थे गलत है, एस तो होंदा है, सी लगांदा पाया, सीरेनिटी की स्पेलिंग इत्थे राइट है जी। बाकी क्लैवर की स्पेलिंग भी रॉन्ग है, मतलब पहली 3 A B ते D रॉन्ग है, सीरेनिटी की स्पेलिंग इत्थे बिल्कुल करेक्ट दी हुई है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट सेइंग डायरेक्शन इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ओके, तो 9th में हमें ग्रामेटिकल एरर को ढूंढना पड़ेगा। काउज आर amongst the gentlest of animals, none shows more passionate tenderness towards their young. Okay, so none shows more. Cows are amongst the gentlest of animals, none shows more passionate tenderness towards their young. ਹੁਣ इसी स्टेटमेंट ਨੂੰ ऑप्शन च ब्रेक किया होया थले, तो सानू इत्थे लभना पैना कि जो है ऑप्शन केड़े वाले ऑप्शन पार्ट च है। तो इत्थे नन हो गया, काउज आर amongst the gentlest of animals, the gentlest of animals towards their young, none shows more passionate, none shows more passionate। इस वाले पार्ट इत्थे गलत एरर है स्टूडेंट्स, ठीक है। इत्थे शोज़ नहीं आएगा, इत्थे एस ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, सिंगुलर नहीं है ये। तो प्लूरल काउज की गल करता पाया प्लूरल की, ठीक है, तो इत्थे शो आएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग इन द ब्लैंक। ओके, तो राइट ऑप्शन सानू इत्थे लगाना पैना। तो स्टेटमेंट सेइंग चार्ली चैपलिन्स राइज टू फेम पैरेलल्ड द ब्लैंक ग्रोथ ऑफ हॉलीवुड मूवीज इन द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ द सेंचुरी। So Charlie Chaplin's rise to fame paralleled the sluggish, lazy होंदा है, explosive, progressing, delayed। ओके, तो इत्थे जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी एक्सप्लोसिव। पैरेलल द एक्सप्लोसिव ग्रोथ, ग्रोथ है इत्थे पॉजिटिव वर्ड है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव वर्ड है, तो इत्थे प्रोग्रेसिंग ग्रोथ का गलत हो जाएगा। ओके, एक्सप्लोसिव ग्रोथ इज़ द राइट टर्म ओवर हेयर। डिलेड बिल्कुल ही कॉन्टेक्स्ट तो बाहर है, ये तो आने नहीं है। ए तो डी तो नेगेटिव ऑप्शन है, ये तो लगने ही नहीं है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11th हो रहा है सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ। तो सिनोनिम लभना पैना जिथे सानू, तो राइट सिनोनिम कंकरेंस, कंकरेंस द राइट सिनोनिम बनेगा स्टूडेंट्स। कंकरेंस द राइट सिनोनिम बनेगा दैट वुड बी अग्रीमेंट। अग्री करना होता है किसी तो सहमत होना बेसिकली। इट्स नॉट करेंसी, इट्स नॉट अकरेंस, इट्स नॉट कॉन्फ्यूज्ड। सो अग्रीमेंट वुड बी द राइट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12, इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द एंटायर ब्लेम फॉर क्राइम कैन नॉट बी लेड एट द डोर्स। ये जोड़ा इत्थे ब्रैकेट च दिता है पार्ट, इनू सानू इंप्रूव करना पैना। हो सकता है ये सही भी हो सकता है, जो सही होएगा तो नो इंप्रूवमेंट आंसर बनेगा। तो 12 का जोड़ा राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स बी लेड। बी तो बाद थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। कांट बी लेड, लेड मतलब लीड की सैकेंड फॉर्म लगाता पाया, लीड लेड, जबकि इतने लेड वर्ब का यूज़ होना चाहिए। द एंटायर ब्लेम फॉर क्राइम कैन नॉट बी लेड
at the doors. C would be the right answer. can't been तो होंदा नहीं है, ये भी गलत है. can't be laid at, इतने द गलत है, द दिता ही नहीं है. और नो इम्प्रूवमेंट भी इतने ड्रॉप हो गया क्योंकि लेड इतने आना नहीं है. कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस out of the 4 alternatives select the alternative which best express the meaning of the idiom phrase in the bold. 13वां ਦਾ ਸਾਨੂੰ idiom ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ. the officer kicked up a row over the issue. kicked up a row, ठीक है. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ great fuss, बॉदर करना, किसी को परेशान करना. अवॉइडेड द इशू रॉन्ग है. गेव स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स रॉन्ग है. गेव अ किक इन द एयर, ये भी बिल्कुल गलत है. मेड अ ग्रेट फस, फस होता किसी को परेशान करना, बॉदर करना. द ऑफिसर मेड अ ग्रेट फस किक्ड अप अ रो ओवर द इशू, मतलब कोई मुद्दा होएगा उस उत्ते उन्हें ज़्यादा मतलब परेशानी बनाती ऑफिसर ने, ये बोलना पाया. कम टू द क्वेश्चन नंबर 14. सिलेक्ट द वर्ड विद द करैक्ट स्पैलिंग. करैक्ट स्पैलिंग देनी जी 14 की. हुण इत्थे देखना पैना पैसिमिज्म की स्पैलिंग सही है, ऑप्टिमिज्म की सही है, या कंज्यूमरिज्म की सही है, या कम्युनलिज्म की सही है. ओके, तो इत्थे पैसिमिज्म की स्पैलिंग बिल्कुल गलत है, ऑप्टिमिज्म की स्पैलिंग भी गलत है, कम्युनलिज्म की स्पैलिंग भी गलत है. इत्थे जिहड़ी राइट स्पैलिंग है स्टूडेंट दैट वुड बी कंज्यूमरिज्म की स्पैलिंग बिल्कुल राइट है. CONSUMER. कंज्यूमर की स्पैलिंग पहले ठीक दी है, फिर उहदे नाल ISM लगाता. कम टू द क्वेश्चन नंबर 15. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच. आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन इंडायरेक्ट स्पीच. इंडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच. ओके, मतलब नरेशन के उत्ते एक क्वेश्चन है जी सानू डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच, ये भी पंजाब के एग्जाम पूछी जाती है. तो कहता स्टेटमेंट है ही सैड रवि वाई आर यू साउंडिंग नो सो डिप्रैस टुडे. हुण जी रिपोर्टेड स्पीच है जी ये WH वर्ड तो स्टार्ट होंदी पई है, तो इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म तो असी बनानी नहीं है. वाई डिड ही गलत है क्योंकि आर यू लगता पाया, ठीक है. ये वॉज वर्ड चीज़ लेके जाना पड़ना है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सानू बनाना नहीं पैना, ठीक है. तो ए ऑप्शन कट गई. सी ऑप्शन वाई ही साउंडेड टेंस गलत लगाता पाया. अगले वाई वॉज ही, ये इंट्रोगेशन बना रहा है, डी भी गलत है, तो आंसर बनेगा साडा बी. ही आस्क्ड रवि वाई ही वॉज, क्योंकि WH वर्ड की टाइप का ये रूल होंगे स्टूडेंट्स कि कदे भी जब आप इनू मोड़ते हैं इंडायरेक्ट तो ये क्वेश्चन जोड़ा क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट स्पीच ये सिंपल सेंटेंस बनाना पैंदा सानू. मतलब नरेशन च कदे भी क्वेश्चन मोडिफाई नहीं किया जाता. तो डी ऑप्शन ता गलत है क्योंकि वाई वॉज ही करता पाया, वाई वॉज ही नहीं होएगा. बी ता सही है क्योंकि वाई ही वॉज ये सिंपल बने, देखो सिंपल सेंटेंस बनाना होंगे और ISMR वॉज वर्ड से लेके जाना पैना सानू. Come to the question number 16. In the following question, the sentence has been given in active passive voice. Out of 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in active passive voice. They are going to build a new airport near the old one. Passive voice देनी पैनी students 16 दी. So they are going to build. Going to वाली type है. Going to दे नाल passive voice B लगना है तो verb दी third form built होनी चाहिए. तो a new airport is इतने वर्ब ही नहीं है, गलत हो गया. अ न्यू एयरपोर्ट इज़ बीइंग कॉन्टीन्यूस है नहीं है, गोइंग टू वाली टाइप एक्चुअली विल बी. कम टू द क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स. डायरेक्शन सेइंग इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस. आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस. क्लियर, मतलब एक एक्टिव पैसिव वॉइस सानू देता है स्टूडेंट्स, ठीक है. स्टेटमेंट सेइंग दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट नियर द ओल्ड वन. हुण ये जो सेंटेंस है स्टूडेंट्स ये गोइंग टू है, ये गोइंग टू वाली टाइप होंगी है, ध्यान रखियो. जब भी आप गोइंग टू वाली पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आप ध्यान रखना उत्थे गोइंग टू लगाना है, गोइंग टू पुट करके उहदे नाल बी लगता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सानू लगानी पैनी. ये वाली ऑप्शन लभने की कोशिश करनी है गोइंग टू प्लस बी प्लस V3. हूँ जो आप ये कॉन्टीन्यूस टेंस तो है नहीं, कॉन्टीन्यूस नहीं है तो बीइंग वाली ऑप्शन तो आप देखनी भी नहीं है. ये ना सोचना ये कॉन्टीन्यूस है, ये गोइंग टू वाली टाइप कहते हैं, ठीक है. इतने गोइंग टू बी बिल्ड तो सही लगता पाया. अ न्यू एयरपोर्ट इतने वर्ब मिसिंग है, इज़ होंदा तो ए हो सकता सी, गलत हो गया. बी बीइंग वाली ऑप्शन तो चुकनी नहीं है. अ न्यू एयरपोर्ट विल बी फ्यूचर तो आप जाना ही नहीं है. तो डी आंसर साडा बनेगा अ न्यू एयरपोर्ट इज़ गोइंग. देखो इतने गोइंग आ गया, टू लग गया, उहदे बी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ट आती पई है, तो ये साडा आंसर बनेगा डी. क्लियर. Come to the question number 17 students. Rearrange the parts of the sentence in proper order. In correct order च आप देखना है. तो A ऑफ स्टेटमेंट कहती डिसेंट इन अ कोर्ट, P कहता
द इंटैलीजेंस ऑफ अ फ्यूचर डे, क्यों कहता टू द ब्रूडिंग स्पिरिट ऑफ लॉ टू, एंड आर बोल रहा ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज़ एन अपील। हूँ आप कभी भी जंबल करते स्टूडेंट तो तुहानूं ये स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना है, सब्जैक्ट लगता है, उस तो बाद सानू वर्ब लभनी पैनी, तो फिर ऑब्जैक्ट सेंटेंस बनाते तो यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है, सब्जैक्ट वर्ब ऑब्जैक्ट। हूँ डिसेंट तो स्टार्ट नहीं हो सकता, टू प्रैपोजिशन तो वाक्य स्टार्ट नहीं हो सकता, ऑफ तो स्टार्ट नहीं हो सकता, मतलब अंडरस्टूड है पी तो वाक्य शुरू होएगा। हूँ पी वाली ऑप्शन चैक कर लो कि है, सी तो डी, तो ए तो ए बी तो कट गई, ठीक है। हूँ पी तो बाद आर लांदा पाया, पी तो बाद क्यू लांदा पाया, डी च क्लीयर। तो पी तो बाद कहता द इंटैलीजेंस ऑफ अ फ्यूचर डे, पी आर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज़ एन अपील, फिर क्यू टू द ब्रूडिंग स्पिरिट ऑफ लॉ टू डिसेंट इन अ कोर्ट, तो सी आंसर बनेगा क्योंकि पी तो बाद क्यू इतने राइट साउंड नहीं करता। द इंटैलीजेंस ऑफ अ फ्यूचर डे टू द ब्रूडिंग स्पिरिट ऑफ लॉ टू डजेंट मेक सेंस, तब पी इतने पी आर क्यू ए, ये साडा राइट आंसर बनेगा सी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 18, इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। 18 कहता इंप्रूव करना, आई कांट गो आउट इन द रेन एज आई एम नॉट हैविंग एन अम्ब्रेला। स्टूडेंट्स ये जी हैव वर्ब होंगी है, इसका ध्यान रखना है, पेपर च क्वेश्चन आता है हैव वर्ब के उत्ते। हैव वर्ब के ना दो कॉन्टैक्सट होंगे हैं बेसिकली, इनू दो तरीके आप यूज़ करते हैं। जे तो आप गल करिए खाने पीने की, ईटिंग सेंस, अगर सेंटेंस में ईटिंग सेंस हो तो कहता कि हैव के नाल ING करैक्ट होंगे। जिदा मैं कहता जब तुसी मेरे घर आए मैं चाय पी रहा सी, व्हेन यू केम हेयर आई वॉज हैविंग माई टी, बल्कि आजकल खाने पीने में लोग ईटिंग तो लगाते ही नहीं है, हैविंग ही यूज़ करते हैं। आई वॉज हैविंग माई लंच, आई वॉज हैविंग माई डिनर, क्लियर। लेकिन ध्यान रखना है अगर हैव वर्ब का काम पोजेशन सेंस में यूज़ किया गया हो, अगर वाक्य में पोजेशन होंगे किसी चीज़ के उत्ते अधिकार, जिदा तुसी कहते कि मेरे को एक कार है, तो क्या आप ऐसे बोलोगे आई एम हैविंग अ कार, आप ऐसे बोलोगे आई हैव अ कार, क्लियर। वहाँ पे हम हैविंग नहीं बोल सकते, आई हैव अ कार होता है, आई हैव एन अम्ब्रेला बोलोगे, तो इतने हैविंग तो बिल्कुल गलत है, मतलब नो इंप्रूवमेंट वाले ऑप्शन तो कट गई, ठीक है। इंप्रूव तो करना पैना कि वो कहता आई एम नॉट हैविंग एन अम्ब्रेला, हैविंग एन अम्ब्रेला नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला होगा, सो बी वुड बी द राइट आंसर, आई डू नॉट हैव एन अम्ब्रेला वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि हैव दा इत्थे जो यूज़ कर रहा है ये कर रहा है पोजेशन सेंस, तो पोजेशन सेंस स्टूडेंट्स ध्यान रखियो हैविंग नहीं होता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 19, direction saying in the following questions the sentence given with blank to be filled in with an appropriate word, select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option। his directions to the driver were, पता जेडी उन्हें डायरेक्शंस दिशा निर्देश ड्राइवर ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, blank and helped him पॉजिटिव स्टेटमेंट चलती पई है टू रीच ऑन टाइम, कि उस समय के उत्ते पुज गया जिस टाइम के उत्ते उन्हें पुजना होएगा, क्योंकि उन्हें जो डायरेक्शंस दी थी वो सही सीगियां, सही डायरेक्शन राइट डायरेक्शंस दे लिए राइट वर्ड लगेगा। इम्प्लिसिट, इट्स नॉट एक्सप्लिसिट, इट्स नॉट एक्सप्लिटिव एंड इट्स नॉट इम्प्लीकेट, ये बिल्कुल गलत वर्ड है। इम्प्लीकेट होंगे राइट और वी कैन से क्लीयर, सही डायरेक्शंस उन्होंने दी तो अपने जी डेस्टिनेशन से उन्हें पुजना सी पुज गया बंदा। कम टू द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, डायरेक्शन सेइंग इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस out of the four alternatives select the alternative which is the best substitute of the phrase। एक वर्ड फ्रेज देने